Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In this lecture we are having a topic book exercise of lesson 1 textbook. So open your books on page 6. Students, you are asked in this question that respond to each statement by writing an explanation as to why you agree or disagree. Students, here are given some statements and you have to give the explanation to these statements that are you agree or disagree, and also give the explanation that why you are agree or disagree with these statements. We live in a fair and just society. Second, it is important to treat others with justice and fairness. Third, revenge can sometimes be justified. And fourth, there is justice and fairness at my school. Students, I am sharing just my point of view. You should write it with pencil. But if you have different opinion, so write it in your practice copy or rough copy. Students, we live in a fair and just society. Yes, I am agree. We live in a fair and just society because we are enjoying a peaceful life. Students, as compared to other disputed countries like Kashmir and Palestine, कश्मीर और फ़लस्तीन की निस्बत अभी भी हमारे मुल्क में अमन की पासदारी कायम है. That's why I am agree. Number second, it is important to treat others with justice and fairness. I am agree because the Holy Quran instructs us to do the justice, क्योंकि कुरान पाक हमें हिदायत देता है इंसाफ करने की. Number second, revenge can sometimes be justified. बदला लेने से क्या इंसाफ मुहैया हो जाता है? No, I am disagree because it creates disturbance in the society. इससे मुआशरे में अमन व अमान की हालत पे उसको क्या होता है? अमन व अमान की हालत तहस नहस हो जाती है. फिर हर कोई बदला लेने पे तुल जाता है और माफ़ी का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है. नंबर 4, देयर इज़ जस्टिस एंड फेयरनेस एट माई स्कूल. या आई एम एग्री बिकॉज एवरी वन इज़ ट्रीटेड इन द सेम वे. हर किसी के साथ यकसा सलूक किया जाता है और फैसला मेरिट की बिना पे किया जाता है. This is vocabulary. Find the meaning of the following words from the dictionary and identify the part of speech of the word through abbreviation used. Students, these are the following words. You have to find the dictionary. You have to find the meanings in the dictionary for these words and also identify the part of speech. आपने इन वर्ड्स के पार्ट ऑफ स्पीच भी आपने मेंशन करने हैं कि ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंगिंग है थ्रू द एब्रीविएशन. स्टूडेंट्स, डिक्शनरी में NVAD इस तरह के एब्रीविएशंस यूज़ होते हैं फॉर पार्ट ऑफ स्पीच. जैसे कि N अगर हो तो वो नाउन के लिए होता है, V वर्ब के लिए होता है. तो आपने बताना है कि ये कौन से ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. कौन से पार्ट ऑफ स्पीच हैं? मैंने भी कुछ सर्च किए हैं. अपोज्ड, नॉट एग्रीइंग और अप्रूविंग ऑफ समथिंग. अपोज्ड मीन मुखालिफ और ये एक वर्ब है. अपोज की सेकेंड फॉर्म है. अप्रूवल, मंजूरी, दिस इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. परमिशन टू डू समथिंग. डिसीजन, फैसला, इट इज़ नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अ चॉइस दैट यू मेक अबाउट समथिंग आफ्टर थिंकिंग अबाउट इट. एयर्स, एयर, इट इज़ नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, a person who has the legal right to receive the property of someone who dies. Adopted, it is verb, to begin to use or have a different manner, method, etc. Distinction, ikhtilaf, it is abstract noun, a noticeable difference. You have to also search the meanings in dictionary for these words. Number B, consult a thesaurus and find out the synonyms of the following words. What is thesaurus? A book that lists words in group of synonyms and concepts. Student, thesaurus में आपको easily इन words के synonyms मिल जाएंगे. I have also searched unfriendly, गैर दोस्ताना, not kind or helpful. Its meaning and synonym for this word is cold eye or unsympathetic. Unsympathetic, गैर हमदर्दाना. Opposing, मुखालिफ, meaning to disagree of something, and synonym is resist, withstand. Danger, khatra, the possibility that something bad will happen is meaning, and synonym distress or trouble. Approval, manzuri, permission to do something, and synonym is favor or blessing. False, wrong, not real or genuine, untruthful, and wrong is synonym for this word. Resolve, हल करना, to find an answer to something, and synonym is decision or resolution.
issue, बहस या मसला, something that people are talking about. After effect, result is synonym for this word. Number C. Underline the silent letters in the following words. First of all, I will explain what is silent letters. Students, silent letters, they are the letters which in a word remain silent. They are a letter that in particular or in specific words don't correspond to any sound in the word's pronunciation. ये ऐसे लेटर होते हैं जिनको वर्ड्स की अदायगी के दौरान इन लेटर्स को हम प्रोनाउंस नहीं करते, ये साइलेंट होते हैं. आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाइम. क्लाइम स्टूडेंट्स, इंग्लिश में ये रूल है कि जिधर लेटर एम और बी साथ में आए एक वर्ड में तो बी जो है वो साइलेंट हो जाता है. क्लाइम बी साइलेंट, ब्रिज बी साइलेंट, इज बी साइलेंट, कॉम बी साइलेंट, वी नो, सेटल बी साइलेंट, डेप्थ बी साइलेंट एंड डाउट बी साइलेंट. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज साइलेंट लेटर्स. साइलेंट लेटर्स वर्ड्स में हम प्रोनाउंस नहीं करते. नंबर डी, यूज़ अ डिक्शनरी टू डिमार्केट द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू सिलेबल्स. आप डिक्शनरी यूज़ करें और जो गिवन वर्ड्स हैं उनको आप अलग अलग करें. डिमार्केट मीन अलग अलग करें. किन चीज़ों में? सिलेबल्स में, टुकड़ों में. व्हाट इज सिलेबल? Students, syllable, it is a unit of pronunciation having one vowel sound with or without surrounding consonants forming the whole or part of the word. Students, syllables basically हम जानते हैं कि vowels जो हैं वो 5 होते हैं, but sometimes we consider y as vowel, a, e, I, o, u, and sometimes we consider y as vowel. y को भी हम समटाइम्स एज अ वोवल कंसिडर करते हैं. स्टूडेंट्स, सिलेबल हमारे पास क्या होता है? बेसिकली द नंबर ऑफ वोवल साउंड्स इन अ वर्ड इज़ द नंबर ऑफ सिलेबल्स. वर्ड में जितने भी वोवल्स यूज़ होंगे, वोवल साउंड्स यूज़ होंगे, वही जो है वो इस वर्ड्स के सिलेबल कहलाते हैं. इन वर्ड्स को आपने सिलेबल्स में क्या करना है? अलग अलग करना है. अब ऑर्डरली हमारे पास वर्ड है तो यहाँ पे देखें हमारे पास 3 वोवल साउंड यूज़ हुए हैं, तो इट्स मीन यहाँ पे 3 सिलेबल्स यूज़ हुए हैं. ऑर्डरली, डिस, एग, री. आई इज वोवल साउंड, ए हैज़ वोवल साउंड एंड ई. डिस, एग, री. So it is demarcated into 3 syllables. Direct, it is demarcated into 2 syllables. Gardener, it is demarcated into 3 syllables because 3 vowel sounds is used. Silently, lovingly. Students, this is the writing portion. Complete the mind map and write down the summary of the lesson. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam's justice. Students, you have also read the lesson. आपने लेसन को पढ़ा हुआ है. अब आपने क्या करना है? इस लेसन की एक समरी, एक खुलासा आपने लिखना है. इसके लिए मैं आपको एक हिंट देती हूँ कि आपने क्या करना है. लेसन को पढ़ते वक्त आप मेन पॉइंट्स को क्या करें? इकट्ठा करें और उसी को यूज़ करते हुए एक समरी लिखें आप. जैसे कि यहाँ पे गिवन है, बिफोर प्रॉफिटहुड जस्टिस कैसा था और नबूवत के बाद जस्टिस का इंतज़ाम कैसा हुआ अरब में. आप पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स को इकट्ठा करें और उसी को यूज़ करते हुए मेक अ समरी of the lesson. Read the second paragraph of the lesson carefully. Underline the specific words, vivid verbs and modifiers. Students, इस लेसन का सेकेंड पैराग्राफ आप पढ़ें और उसी सेकेंड पैराग्राफ में आपने पेंसिल से अंडरलाइन करने हैं स्पेसिफिक वर्ड्स, विविड वर्ब्स एंड मॉडिफायर्स. स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि व्हाट इज स्पेसिफिक वर्ड्स. स्पेसिफिक वर्ड्स आर पार्टिकुलर वर्ड्स दैट रिफ्लेक्ट द मेन आइडिया. स्पेसिफिक वर्ड्स सेंटेंस में या पैरा में वो वर्ड्स होते हैं जिससे आपको मेन आइडिया का पता लगता है. विविड वर्ब्स, डिस्क्रिप्टिव वर्ब्स दैट गिव डिटेल टू एन आइडिया. ये इस आइडिया को, मेन आइडिया को क्या करते हैं, उसके बारे में डिटेल देते हैं. जबकि मॉडिफायर्स क्या होते हैं? मॉडिफायर्स एन एडजेक्टिव आर एडवर्ब. ये
एडजेक्टिव होते हैं, वी नो व्हाट इज एडजेक्टिव एंड व्हाट इज एडवर्ब. एडजेक्टिव गिव डिटेल अबाउट नाउन एंड एडवर्ब गिव डिटेल टू वर्ब. स्टूडेंट्स, ये ऐसे एडजेक्टिव और एडवर्ब होते हैं जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन, मज़ीद मालूमात मुहैया करते हैं. सो यू विल अंडरलाइन द स्पेसिफिक वर्ड्स, विविड वर्ब्स एंड मॉडिफायर्स. Question C. After brainstorming and developing ideas, write a simple and unified paragraph of about 50 to 60 words on patience of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam using a clear topic, sentence, specific words, vivid verbs and modifiers. Students, you will have to write an essay ऑन पेशेंस ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. आपने क्या करना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहम्मुल पर, पेशेंस मीन तहम्मुल या सब्र. हमें पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेशेंस कितना था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशेंस पर आपने एक ऐसा लिखना है कंसिस्ट ऑफ 50 to 60 वर्ड्स. 50 से 60 वर्ड्स पर आपका ये ऐसे कंसिस्ट होना चाहिए और उसमें आपने यूज़ करना है, आपका जो टॉपिक है वो क्लियर होना चाहिए. सेंटेंस, टॉपिक सेंटेंस का यूज़ करें. स्पेसिफिक वर्ड्स, विविड वर्ब्स एंड मॉडिफायर, यू नो वेरी वेल. What is topic sentence? A topic sentence is a sentence that states or suggests the main idea of a paragraph. Students, टॉपिक सेंटेंस जो होता है उससे ही उस पैरा के मेन आइडिया का हमें पता लगता है. तो आपने टॉपिक सेंटेंस का पैराग्राफ में यूज़ ज़रूर करना है. दिस इज़ द लिसनिंग एंड स्पीकिंग पोर्शन. Work in pairs and practice the dialogue below to ask and respond to question of personal interest. Students, आप अपने फ्रेंड के साथ भी मिलके इन डायलॉग्स की, इन सेंटेंसेस की, इन स्टेटमेंट की प्रैक्टिस कर सकते हो. आप 2 फ्रेंड्स हो जाओ और आपस में इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें. इट विल हेल्प यू टू कन्वर्सेट इन इंग्लिश विद अदर्स. मे बी ये आपको हेल्पफुल हो जब आप दूसरे के साथ इंग्लिश में बात करें. आल्सो इट विल हेल्प यू टू लर्न वोकैबुलरी.